हैरान कौन क्यों है, ये अजनबी क्यों है, ये एक अछूती चीज़ क्यों है। आई ट्रो मैंने पूछा कि ये एक स्ट्रेंज चीज़ क्यों थी। वेयर आर दोज लाइट्स सो मैनी एंड फेयर दैट सिग्नल मेड बट नाउ। आगे कहते जी वेयर आर दोज लाइट्स सो मैनी एंड फेयर दैट सिग्नल मेड बट नाउ। उन्होंने कुछ उनको रोशनी या लाइटें नजर आई और उसके बारे में उन्होंने बात की कि ये जो हैं ये मैनी एंड फेयर लाइट्स हैं, ये क्या हैं और ये किसकी तरफ इशारा कर रही हैं। अच्छा जी, अगला है जी संजय कहता है स्ट्रेंज बाय माई फेथ द हर्मिट सेड एंड दे आंसर्ड नॉट और sheer and planks looked warped and see those sails how thin they are and sheer. I never saw aught like to them unless perchance it were. इसका मतलब जी कहता है कि the hermit agreed that it was strange by my faith. वो कहता है agreed it was strange, adding that the people in the ship did not respond to any their shouts, and they answered not our cheer. The plank of the ship looked crooked, the planks looked warped. और उसके बाद कहता है and the sails were thin and dry, and see those sails how thin they are and sheer यानी dry. I never saw aught like to them unless perchance it were. और कहता है कि he had never seen anything else like those sails. फिर कहता है जी brown skeletons of leaves that lag my forest brook along when the ivy tod is heavy with snow and the owlet whoops to the wolf below that eats the she wolf's young. कहता है कि the only thing that may perhaps be said to resemble these sails was the skeletons of leaves which made the brook in the wood flow slowly at the time when the ivy tod is heavily burdened with snow. At the young one of the owl hoots to the wolf that has eaten the young one of the she wolf. अगला स्टैंजा कहता है जी डियर लॉर्ड इट had a fiendish look. The pilot made reply, I am afeard. Push on, said the hermit cheerily. Adaji, the pilot replied that the ship had a devilish look. The hermit cheered him up and asked him to row on. The boat came closer to the ship, but I nor spake nor steered. The boat came close beneath the ship and straight sound was heard. कहता है कि the boat जो है वो had now come closer to the ship, but the mariner neither moved nor said anything, but I nor spake nor steered. उसके बाद कहता है the boat had come just within reach of the ship, straight away a sound was heard. उसके बाद जनाब लाइन 546 है, कहता है under the water it rumbled on, still louder and more dread. It reached the ship, it split the bay, the ship went down like lead. अगला स्टैंजा में कहता है जी under the water it rumbled on, पानी के नीचे rumbled गिड़गिड़ाया, still louder अभी तक ऊंचा और ज़्यादा खौफनाक, it reached the ship और वो reach ship तक पहुंचा, it split the bay और उसने बे को split किया, तोड़ा, The ship went down like lead और शिप जो एक वजनी चीज की तरह नीचे चला गया. फिर कहता है stunned by that loud and dreadful sound which sky and ocean smote like one that hath been 7 days drowned, my body lay afloat, but swift as dreams myself I found within the pilot's boat. अच्छा जी अगला स्टैंजा कहता है stunned by that loud and dreadful sound, वो इस ड्रेडफुल और लाउड साउंड से वो शशदर रह गया. और उसके बाद कहता है विच स्काई एंड ओशन स्मूथ लाइक वन दैट हैथ बीन 7 days drowned, माई बॉडी हैज ले अफ्लोट
but swift as dreams myself I found within the pilot's boat. कहता है कि जो मैरिनर था वो was dazed by the dreadful sound, वो जो ऊपर वाले उसके सिंक करने की जो आवाज़ थी, ड्रेडफुल आवाज़, उससे वो डेज्ड हो गया. which seemed to strike the sky and the sea, जैसे एक समुंदर और आसमान की टक्कर हो जाए वो वाली आवाज़ थी. द मरीनर ने फ्लोटिंग ऑन द सी, और वो समंदर के ऊपर फ्लोट कर रहा था. एज इफ इट हैड बीन द बॉडी ऑफ अ मैन हु हैज़ बीन डेड अ वीक, और वो इस तरह से हर फ्लोटिंग कर रहा था जैसे कोई डेड बॉडी एक हफ्ते से, किसी आदमी की डेड बॉडी हो जो एक हफ्ते से फ्लोट कर रही हो, एक हफ्ते से मर चुका हो. बट क्विक एज अ ड्रीम ही फाउंड हिमसेल्फ इन द बोट ऑफ द पायलट, मगर उसने जल्द ही उसने ख्वाब में ये फील किया कि वो पायलट की बोट में था. फिर कहता जी अपॉन द व्हील वेयर सैंक द शिप, द बोट स्पन राउंड एंड राउंड एंड ऑल वाज स्टिल सेव दैट द हिल वाज टेलिंग ऑफ द साउंड. कहता है कि जी द बोट स्पन राउंड एंड राउंड, यानी वो स्पिन की दूसरी फॉर्म स्पन, यानी जो कश्ती थी वो जो है वो घूम रही थी तेज तेज. एट द प्लेस वेयर द शिप हैड संक, जहाँ पे वो शिप जो है वो डूबा था. एंड अ व्हिर्लपूल अपीयर्ड, और एक जो समुद्र के अंदर एक वो पैदा होता है, उसको उर्दू में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो लफ्ज़ क्या होता है, व्हिर्लपूल उसे कहते हैं. तो कहता है कि वो पैदा हो गया था. एवरीथिंग वाज क्वाइट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द साउंड वाज स्टिल बीइंग री-इकोड बाय द हिल्स, और हर चीज़ जो थी वो खामोश हो चुकी थी सिवाय इसके कि जो है ना सेव दैट द हिल वाज टेलिंग ऑफ द साउंड, मगर वो जो उसकी शिप के डूबने की और वो जो डूबते हुए जो एक ख़ास गिड़गिड़ाने की आवाज़ें आती हैं, एक बहरी जहाज जब डूबे तो वो आवाज़ें पहाड़ी से टकराने के बाद वापस आ रही थी. बाकी इसके अलावा सारे का सारा माहौल खामोश हो चुका था. उसके बाद कहता है जनाब कि आई मूव्ड माई लिप्स, मैंने अपने होंठों को हरकत दी. द पायलट श्रीक्ड एंड फेल डाउन इन अ फिट. द होली हेरमिट रेज्ड हिज आईज एंड प्रेड वेयर ही डिड सिट. अच्छा जी, अगले सेंस में कहता है मूव्ड माई लिप्स, मैंने अपने होंठों को हरकत दी. द पायलट श्रीक्ड, और पायलट चीखा. एंड फेल डाउन इन अ फिट, और वो गिर गया दौरे की हालत में. और उसके बाद द होली हरमिट रेज हिज आईज, और उस नेक आदमी ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई. एंड प्रेड वेयर ही डिड सिट, और जब वहीं पे दुआ की जहाँ वो बैठा था. फिर कहता है आई टुक द ओर्स, मैंने चप्पू पकड़े. द पायलट्स बॉय, आई टुक द ओर्स, मैंने चप्पू को पकड़ लिया, चप्पुओं को. द पायलट्स बॉय हु नाउ डोथ क्रेजी को laughed loud and long, and all the while his eyes went to and fro. Ha ha, quoth he, full plain I see, the devil knows how to row. इसके बाद कहता है जी कि मैरिनर ने जो है वो took up the oars, चप्पों को पकड़ लिया. उसके बाद कहता है कि at this the pilot's boy went mad, और जो पायलट का बेटा था, लड़का था, वो पागल हो गया. ही लाफ्ड लाउड, और ऊंची ऊंची हंसा. एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी देर तक हंसता रहा. एंड हिज आईज बिगेन टू रोल, और जो उसकी आंखें थी वो रोल करना शुरू कर दिया. ही क्राइड दैट ही हैड नाउ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट द डेविल नोज हाउ टू नाउ. ही वॉज श्योर दैट द मैरिनर वॉज द डेविल, यानी उसने ये समझा कि जो मैरिनर है ये डेवल है. फुल प्लेन आई सी, मैंने यानी मुकम्मल तौर पे मैं क्लियर हो चुका हूँ. द डेवल नोज हाउ टू रो, यानी वो ये समझ चुका था कि डेवल जानता है कि किस तरह से रो किया जाए. तो वो उसका मतलब ये था कि वो उसको ये लगा कि जो मैरिनर है ये डेविल है. कहता है जी एंड नाउ ऑल इन माई ओन कंट्री आई स्टूड ऑन द फर्म लैंड. The hermit stepped forth from the boat and scarcely he could stand. इसका मतलब है जनाब, कहता है कि the mariner stood on the firm ground in his own country and now all in my own country, यानी मैरिनर जो था वो अपने